Hello everyone, welcome to our YouTube channel Agriculture Academy. Today we came with a different series Agriculture Current Affairs for all the exams, and we will see some previous year questions also from different competitive exams. I am your mentor Bikash Dansana working at Indian Institute of Research Hyderabad. So let's start our discussion for today. First we will see important organization and institute. ICAR, Indian Council of Agricultural Research, headquartered at New Delhi, established on 16 July 1929. President Sri Shivraj Singh Chauhan, Director General DG of ICAR is Dr. Himanshu Pathak. Dr. Himanshu Pathak took over the charge of Secretary DR and DG ICAR from Dr. Trilochan Mahapatra on 1st August 2022. This means former DG is Dr. Trilochan Mahapatra and now the DG is Dr. Himanshu Pathak. The Indian Council of Agricultural Research is an autonomous organization under the Department of Agricultural Research and Education. They are under Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India. तो ICAR जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है किसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Formerly, it is known as Imperial Council of Agricultural Research. It was established on 16 July 1929 as a registered society under the Society Registration Act 1860 in pursuance of the report of the Royal Commission on Agriculture. तो ICAR जो है 16 जुलाई 1929 को रजिस्टर हुआ था अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. And ICAR is the apex body for coordinating, guiding and managing research and education in agriculture including horticulture, fishery, animal science entire the country. There we'll see one previous year question asked in ICAR PG exam 2022. Given below are two statements, one is level at assertion and other is level at region. Assertion: Indian Council of Agricultural Research is an autonomous body under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India. Region: the Director General of ICAR is the Presidency of ICAR Society. In light of above statement, choose the correct answer from the option given below. So both A and R are true. Both assertion region are false. Assertion to region false. Assertion for region true. तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3. एसर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा. क्यों ऐसा हुआ? तो हमने पहले भी इधर पढ़ के रखा था सेकंड पॉइंट पे. आईसीआर जो है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर डेआर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और उसका प्रेसिडेंट जो कौन होता है उधर प्रेसिडेंट होता है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी कौन होता है? आईसीआर का जो डीजी होता है वही सेक्रेटरी होता है. तो करंट सिचुएशन में प्रेसिडेंट कौन हो गया आईसीआर का? एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान. और सेक्रेटरी कौन होंगे? डॉक्टर हिमांशु पाठक सेक्रेटरी होंगे. देखो, इट वाज रीऑर्गेनाइज्ड ट्वाइस इन 1965 एंड 1973. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर. देखो पूरा स्टेटमेंट सेम टू सेम लिखे हैं, उसी से क्वेश्चन पूछे हैं. The principal executive officer of the ICAR is the Director General, who is also Secretary to the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education. Then we'll see a milestone of ICAR. Milestone of ICAR, the first initiation of All India Coordinated Research Projects on मैथ्स in 1957. ये भी क्वेश्चन पूछता है. पहला इक्री प्रोजेक्ट किस में स्टार्ट हुआ था? मैच में हुआ था 1957 में. देन स्टाटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डेड टू आईआरआई इन 1958. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑन लैंड ग्रांट पेटन एट पंतनगर 1960. कौन सा यूनिवर्सिटी है वो? जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो कि पंतनगर उत्तराखंड में है. वो 1960 में पहला स्टेट यूनिवर्सिटी होकर एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में. प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द परव्यू ऑफ 1966. तो आईसीआर को ये पावर दिया गया कि डिफरेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट आईसीआर कंट्रोल करे. क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर in 1973. Opening of first
कृषि विज्ञान केंद्र केवीके पुडुचेरी और पौंडीचेरी in 1974. Establishment of Agricultural Research Service and Agricultural Scientist Requirement Board ASRB in 1975. ये क्या करता है? ARS और ASRB ये साइंटिस्ट सिलेक्शन करता है फॉर डिफरेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट अंडर ICAR, लाइक IRR हो गया, IIOR हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जितना भी ऑल इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें साइंटिस्ट प्रोवाइड करता है, साइंटिस्ट सिलेक्शन करता है एग्जाम के थ्रू. लॉन्चिंग ऑफ लैब टू लैंड प्रोग्राम एंड नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट NARP in 1979. इनिशिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम IVLP in 1995. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जीन बैंक एट न्यू दिल्ली इन 1996. इसको क्या बोलते हैं अभी? NBPJ, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स. The ICAR Best Award with the King Borden Award in 1989 for its valuable contribution in the Green Revolution. Again, this award in 2004 for research and development efforts made under the partnership in Rice Wheat Consortium. Launching of National Agricultural Technology Project NATP in 1998 and National Agricultural Innovation Project NAIP in 2005. The next institute is IRI, Indian Agricultural Research Institute. It is the apex institute of agriculture. फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 1 अप्रैल 1905 हुआ था. लोकेशन कहाँ पे है? पूसा दिल्ली पे है. डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर TR शर्मा, तिलकराज शर्मा, DDG क्रॉप साइंस. ICAR assumed additional charge as the director of ICAR IRI on 1st July 2024. He took over the charge फ्रॉम द फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर अशोक सिंह. डॉक्टर अशोक सिंह इसका पहले डायरेक्टर थे, 2-3 दिन पहले वो रिटायर्ड हुए, तो इसलिए जो है क्रॉप साइंस DDG क्रॉप साइंस डॉक्टर TR शर्मा उसका एडिशनल इंचार्ज लिए है IRI डायरेक्टर का. इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पॉपुलरली नोन एज पूसा इंस्टीट्यूट began its journey in 1905 at Pusa, Bihar with generous grant of 30,000 pounds from an American philanthropist, Mr. Henry Phipps. The institute was there then known as Agricultural Research Institute ARI, which function with 5 departments. कौन सा डिपार्टमेंट है? एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी यूनिट was added in 1907. The name of ARI was changed to Imperial Institute of Agricultural Research in 1911 and in 1919 it was renamed as Imperial Agricultural Research Institute. Following a devastating earthquake on 15th January 1934, the institute was shifted to Delhi on 29 July 1936. Post-independent, the institute has been renamed as Indian Agricultural Research Institute. तो क्या हुआ? बिहार पूसा में 15 जनवरी 1934 को अर्थक्वेक हुआ, इसकी वजह से इंस्टीट्यूट को नुकसान हुआ और ये शिफ्टेड हुआ दिल्ली को कब? 29 जुलाई 1936 को, और ये रीनेम्ड हो गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. It attained the status of deemed university in the year 1958. Currently, the institute has 20 division है और इसमें जितना भी IRI में जितना भी डिपार्टमेंट होता है सब लोग डिवीजन बोलते हैं इसको. और 5 मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर है इसमें, 8 रीजनल स्टेशन है, 2 ऑक्सीजन नर्सरीज है, 3 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन द हेडक्वार्टर एट IRI, 10 नेशनल सेंटर्स फॉर फंक्शनिंग अंडर द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट. थर्ड इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र पे. एस्टैब्लिश 12 जुलाई 1982. चेयरमैन कौन है? श्री साजी KV. नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ B. शिवरामन कमिटी बाय द एक्ट 61 1981 ऑफ द पार्लियामेंट ऑन 12 जुलाई 1982. ये डेट जो है याद रखो, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है. नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट डेट एंड ईयर 12 जुलाई 1982 by transforming the agricultural credit function of RBI refinance function of the agricultural refinance and development of corporation. It was dedicated to the service of the nation by late Prime Minister Srimati Indira Gandhi on
5 नवंबर 1982। तो पहले क्या होता था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे आरबीआई जो है टोटल फंक्शन देख रहा था, फाइनेंस हो गया, एग्रीकल्चर फाइनेंस, नॉर्मल फाइनेंस, ये सब को किसके अंडर था, आरबीआई के अंडर। तो आरबीआई का बर्डन कम करने के लिए क्या किया, एक सेपरेट एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ 12 जुलाई 1982 को। और ये एज ए कंट्री को कब सर्व किया, 5 नवंबर 1982 को। देन फर्स्ट इनिशियल कैपिटल इसको 100 करोड़ दिया गया था। पेड अप कैपिटल एज 31 मार्च 2022 स्टूड एट 14,080 crores with Government of India holding of Rs 40,080 crores. 100% share, the authorized share capital is 30,000 crores. The NABARD's initiatives are aimed at building an empowered and financially inclusive rural India through the specific goal-oriented department, which can be categorized into 3 heads: फाइनेंशियल हेड्स, डेवलपमेंटल हेड्स, सुपरविजन। तो नाबार्ड क्या है, रूरल इंडिया को मैक्सिमली ये टारगेट करते हैं थ्रू फाइनेंशियली, डेवलपमेंटल एंड सुपरविजन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेजेस फार्मर्स इन टेकिंग प्रोजेक्ट इन सिलेक्ट एरिया बाय सब्सिडाइजिंग ए प्रॉपर project cost. All these projects aimed at enhancing capital investment, sustain income flow, and employment areas of the national importance. NABARD has been a channel partner of the government in some of the scheme. Subsidy as and when received from the concerned ministry pass onto the financing banks. तो नाबार्ड क्या है कि चैनल पार्टनर किसके साथ है, गवर्नमेंट का डिफरेंट स्कीम के साथ, डिफरेंट मिनिस्ट्री के साथ। तो डिफरेंट मिनिस्ट्री जब सब्सिडी देता है, ये डायरेक्टली पास कर देता है फाइनेंसिंग बैंक को। देन नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है हमारा एपिडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, न्यू दिल्ली पे है। रीजनल ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी में है। चेयरमैन कौन है, श्री अभिषेक देव। The EPIDA was established by the Government of India under the Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority Act passed by Parliament in 1985. The authority replaced the Processed Food Export Promotion Council (PFPC). EPIDA is mandated with the responsibility of export promotion and development of the following scheduled product. तो एपिडा का क्या काम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन और डेवलपमेंट देखता है। किस किस प्रोडक्ट का देखते हैं, नीचे लिस्ट किया गया है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, देन बिस्किट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, हनी, एग्री एंड शुगर प्रोडक्ट, कोकोआ एंड इट्स प्रोडक्ट, चॉकलेट्स एंड ऑल काइंड्स, देन अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, सीरियल्स प्रोडक्ट्स, ग्राउंडनट, पीनट, वॉलनट, pickles, पापड़, चटनी, guar gum, floriculture product, herbal and medicinal plants. In addition to this, EPIDA has been entrusted with the responsibility monitor import of sugar. EPIDA is administered by मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो स्टूडेंट क्या करते हैं, एपिडा किसके अंदर आता है बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मार के आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि उसमें लिखा है एपिडा का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो ये मिस्टेक मत करिएगा कभी। ये जो एपिडा किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है एपिडा। और देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन, एपिडा असिस्टेंट मैनेजर 2023 में पूछा गया था, नोट से हमारा। The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority comes under the Ministry of Commerce and Industry, Agriculture and Farmer Welfare, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, none of this। तो इसमें से आंसर क्या होगा, हम पहले अभी डिसाइड किए, इधर डिस्कस किए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लास्ट पॉइंट पे। तो ये इसका आंसर होगा फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। देन फिर नेक्स्ट एपिडा असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया एपिडा हैज ए रीजनल ऑफिस, देहरादून, इंदौर, भुवनेश्वर, नॉन। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन होगा। देखते हैं, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, मुंबई पे है, कोलकाता पे है, सेकंड पॉइंट पे देखो इधर, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है।
तो इधर कहीं भी नहीं है ये सब, तो इसलिए इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन। आंसर क्या होगा 1985। एपीडा असिस्टेंट मैनेजर का क्वेश्चन है, ये भी देखो नोट से हमारा आ रहा है, डिस्कस किए थे कहाँ पे, देखो इधर थर्ड पॉइंट लिखा है, दिसंबर 1985 एपीडा एस्टैब्लिश हुआ था एपीडा एक्ट के थ्रू। तो 3 क्वेश्चन मिल गया आपको। फिर देखो चौथा भी है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एपीडा हैज रिप्लेस्ड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसमें, प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये भी डिस्कशन किए थे हम लोग, देखो इधर 5th point पे the authority replaced the process food product food export promotion council, ये गया। 4 क्वेश्चन मिल गया आपको। देन 5th क्वेश्चन देखते हैं, वही सेम एपीडा असिस्टेंट मैनेजर 2023 में पूछा है। एपीडा इज मैंडेटेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड प्रोडक्ट, जागरी, ग्राउंडनट, गुआरगम, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये भी डिस्कशन किया है, लिखा था ना कि एपीडा मैंडेटेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल प्रोडक्ट। कौन कौन सा प्रोडक्ट हमने लिखा था, देखो इधर, उधर ऑप्शन में दिया है, ग्राउंड नट दिया है, गुआरगम दिया है, कोकोआ दिया है, अदर प्रोडक्ट्स भी दिया है। तो ये सब ऑल ऑफ दिस होगा, देखो जागरी दिया है ऑल ऑफ दिस, तो इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। मैक्सिमम नोट से पूछ रहे हैं। The Agri Exchange portal of the EPIDA is an online tool developed to provide all the relevant information on Indian agricultural product to the international buyers and market intelligence. In addition, the portal serves as a universal meeting place for exporter and importer online. Exporter can receive offers and trade inquiry online, and importers can make demand and specific queries. तो एपीडा का एक ऑनलाइन पोर्टल है, क्या है, एग्री एक्सचेंज पोर्टल फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए क्या कर एपीडा ने क्या किया, डेवलप किया एग्री एक्सचेंज पोर्टल। तो इसका काम क्या है, ये जो एक प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, बायर सेलर के लिए, फॉर इंटरनेशनल बायर्स एंड सेलर एंड मार्केट इंटेलिजेंस। इसका काम क्या होता है, यूनिवर्सल मीटिंग प्लेस फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एक ये प्लेटफॉर्म बन गया, किसके लिए, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर ऑनलाइन। एंड हियर इन दैट प्लेटफॉर्म दे सॉल्व द स्पेसिफिक क्वारीज एंड मेक डिमांड्स of the importers and exporter. National Program for Organic Production (NPOP). The Government of India has implemented the National Program for Organic Production. The national program involves the accreditation program for certification bodies, standard for organic production, promotion of organic farming, etc. As per available of the statistic, India is ranked 6th in terms of world organic agricultural land and in terms of total number of producers, first as per 2021 data. Among all the states, Madhya Pradesh covered the largest area of organic certification, followed by Rajasthan, Maharashtra, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir and Karnataka. तो देखिए फिर इधर क्वेश्चन आ गया एपीडा असिस्टेंट मैनेजर नोट से। एग्री एक्सचेंज इज द नेम गिवन टू द ट्रेड पोर्टल एंड अटेम्प्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड्स बाय एपीडा वेयर डैश इट्स स्पेशलिटी, लोन फैसिलिटी, एग्री एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेडिंग, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग होगा, हम लोग पढ़े भी थे इधर, एपीडा डेवलप किया था एग्री एक्सचेंज पोर्टल, ऑनलाइन टूल्स डेवलप टू प्रोवाइड ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरनेशनल बायर एंड मार्केट इंटेलिजेंस। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है एपीडा एग्री एक्सचेंज पोर्टल। Which of the following state has covered the largest area under organic certification process under our national program for organic production? कर्नाटका, उड़ीसा, सिक्किम, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे इधर 4th पॉइंट पे, among all the states मध्य प्रदेश has covered the largest area under the certification, followed by मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा, राजस्थान आएगा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका। तो सबसे ज्यादा किसमें है, मध्य प्रदेश, एमपी में है। 4th ऑप्शन होगा आंसर। ये भी सेम एपीडा असिस्टेंट मैनेजर में पूछ चुका है। एज पर available statistics, India ranked 6th in terms of world organic agricultural land and dash in terms of total number of producers
एज पर 2021 डाटा। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आया, देखो नोट से डायरेक्ट स्टेटमेंट पूरा एपीडा असिस्टेंट मैनेजर 2023 में पूछा था। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। ये डिस्कस किए थे हम इधर भी, देखो थर्ड पॉइंट पे, एज पर अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिया रैंक 6th इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल लैंड। तो वर्ल्ड में जितना एग्रीकल्चरल लैंड है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें से इंडिया का पोजीशन कितना है, 6th। बट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया, इसलिए फर्स्ट पोजीशन है। ये 2021 का लेटेस्ट डाटा है, इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा था असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम एपीडा में। तो अभी तक हम देखो कितना क्वेश्चन मिला आपको इससे नोट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन मिल गया पूरा नोट से आ गया, और क्या चाहिए। देन करंट हेड चेयरमैन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट एंड बोर्ड्स, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री शिवराज सिंह चौहान, मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। हेड ऑफिस इसका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली पे है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री रामनाथ ठाकुर, श्री भागीरथ चौधरी, ये भी है, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली पे है। मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर्स अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री प्रहलाद जोशी, न्यू दिल्ली पे हेड ऑफिस। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्री चिराग पासवान, न्यू दिल्ली, जो चिराग पासवान बिहार से बिलोंग करते हैं। ICAR शिवराज सिंह चौहान प्रेसिडेंट, जो कि फॉर्मर MP का चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और डॉक्टर हिमांशु पाठक डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी हैं ICAR के। एस्टैब्लिश कब हुआ था ये, 16 जुलाई 1929, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे इंस्टीट्यूट में। कहाँ पे है इसका हेड ऑफिस, दिल्ली पे है। IRA का डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर TR शर्मा, DDG क्रॉप साइंस ICAR है। ये एडिशनल चार्ज लिए हैं क्योंकि अभी रिसेंटली डॉक्टर अशोक कुमार सिंह रिटायर्ड हुए। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, न्यू दिल्ली पे है। 1 अप्रैल 1905 पूसा न्यू दिल्ली पे उसका हेड ऑफिस है, नियर करोल बाग साइड। इट इज द एपेक्स बॉडी, मतलब एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी फॉर एन agriculture student, IRI New Delhi. Then next, ASRB Agricultural Scientist Requirement Board, इसका चेयरमैन क्या है, डॉक्टर संजय कुमार, 1 नवंबर 1973 न्यू दिल्ली। तो ASRB का फुल फॉर्म क्या है, वही भी पूछता है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये रिक्रूट करता है कि इसको साइंटिस्ट में डिफरेंट स्टेट में जितना भी सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है ICAR के अंदर, जैसे कि IIR हो गया, IIMR हो गया, IIOR हो गया। द नेक्स्ट नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, चेयरमैन कौन है, डॉक्टर साजी के भी। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, देखो इधर भी 12 जुलाई 1982, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, ईयर है। कहाँ पे इसका हेड ऑफिस, मुंबई पे। मैनेज नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, तो इसका डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर P चंद्रशेखर। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1987 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, हैदराबाद पे है। एपीडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अभिषेक देव। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 13 फरवरी 1986। हेड ऑफिस कहाँ पे है, न्यू दिल्ली पे है। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डॉक्टर जेठा भाई आहिर, 2 अक्टूबर 1958 न्यू दिल्ली। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया श्री अशोक के मीना, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, 1965। हेड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली पे है। देन नार्म नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, डॉक्टर श्रीनिवास राव डायरेक्टर, 1976 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, हैदराबाद पे है। नार्म का फंक्शन क्या है मालूम है आपको, जैसे कि IAS ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए कहा जाते हैं लवासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। तो इसी हिसाब से एग्रीकल्चर का जितना साइंटिस्ट लोग होते हैं ट्रेनिंग के लिए नार्म को आते हैं। हैदराबाद में जो है उधर एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग जितना भी साइंटिस्ट मतलब होते हैं उन लोग को फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग नार्म में दिया जाता है। बहुत प्यारा इंस्टीट्यूट है पूरा। NDRI इसका जो हेड है डॉक्टर धीर सिंह, 1923 करनाल में है वो। क्रिप्को डॉक्टर चंद्रपाल सिंह, चेयरमैन है वो, 1980 पे हुआ था। और इसका हेड ऑफिस है नोएडा में। ICAR CIW सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, डॉक्टर मृदुला देवी डायरेक्टर है इनका। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, अप्रैल 1996, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट
एंड प्राइसेस। प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा चेयरमैन है। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? जनवरी 1965 न्यू दिल्ली पे। इसका फंक्शन क्या है मालूम है आप लोगों को? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसका फंक्शन होता है MSP डिसाइड करने का, जितना मतलब पॉल्स क्रॉप है, ग्रेन है, ये सब का MSP डिसाइड करता है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, डॉक्टर विजय लक्ष्मी चेयरमैन है इनका, और ये कोची में है इसका हेड ऑफिस। 12 जनवरी 1981 वो एस्टेब्लिश हुआ था केरला में, वो केरला कोची में इसका हेड ऑफिस है। द नेक्स्ट टी बोर्ड, श्री अमरदीप सिंह भाटिया, 1 अप्रैल 1954, कहाँ पे है इसका हेड ऑफिस? कोलकाता में। कॉफी बोर्ड, डॉक्टर KG जगदीशा, CEO एंड सेक्रेटरी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1942 को, हेड ऑफिस कहाँ पे है? बेंगलोर में है। देन रबर बोर्ड, डॉक्टर सावर धानिया चेयरमैन है, और ये जो एस्टेब्लिश हुआ था 1947 को, और हेड ऑफिस कहाँ पे है? कोटायम, ये भी केरला में है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, KM हनुमंतरप्पा, 1948 को एस्टेब्लिश हुआ था, हेड ऑफिस कहाँ पे है? बेंगलोर में है, कर्नाटका। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रवनीत कौर, 14 अक्टूबर 2003 को ये एस्टेब्लिश हुआ था, न्यू दिल्ली। देन नीति आयोग, नीति आयोग क्या है? पहले जो 5 ईयर प्लान चल रहा था उसको रिप्लेस, मतलब रीनेम और रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे है। इसका हेड कौन होता है? चेयरपर्सन कौन होता है? जो PM होता है वही रहते हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी है चेयरपर्सन इसका। वाइस चेयरपर्सन है श्री सुमन बेरी, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कौन है? डॉक्टर परमेश्वर आयर। देन इंटरनेशनल एजेंसी विल सी CGIAR इंस्टीट्यूशन। CGIAR का फुल फॉर्म पूछता है। द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर। द कंसल्टेटिव Group on International Agriculture is an association of 46 countries including India, international and regional organization and private foundation devoted to improve global food production. Established in 1971, located in Washington DC, USA. The CGIAR ये क्या? supports network of 16 distributed throughout the world. एंड ये इसको कौन कौन सपोर्ट करता है? फंडिंग कौन करता है? वर्ल्ड बैंक, UNDP एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर ऑफ दिस नेटवर्क। देन 16 इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट इज इंटरनेशनल राइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इरी में है। ये 1960 को एस्टेब्लिश हुआ था, फिलीपींस और इरी फिलीपींस में है। और सीमेट, ये जो है एक मेक्सिकन वर्ड है, मेक्सिको में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेज एंड व्हीट। मेज एंड व्हीट के लिए कौन सा है? सीमेट। तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, M फॉर मेज और M फॉर इसमें जो है सीमेट। सेंट्रल इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, IPC, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, और सॉरी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP, कहाँ पे है ये? पेरू पे है। तो पोटैटो, P फॉर पोटैटो, P फॉर पेरू, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन वर्धा, बोके में है। देन इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट IPJRI, रोम इटली में है। इसका इंडियन वाला वर्जन क्या है? जैसे कि NBPG, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इक्रिसेट, पठानचेरू, हैदराबाद, तेलंगाना में है। ये याद रखेगा, ओनली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट प्रेजेंट इन इंडिया इज इक्रिसेट, जो कि तेलंगाना, हैदराबाद में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया, ICRDA, ये सीरिया में है। सेंट्रल इंटरनेशनल द एग्रीकल्चर ट्रॉपिकल, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, CIT, कैली, कोलंबिया में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, IITA, नाइजीरिया में है। वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या पे है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, CIFR, कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, IIMI, कोलंबो, श्रीलंका पे है।
इंटरनेशनल लाइफस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI नैरोबी केन्या पे है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर लिविंग एक्वाटिक रिसोर्स मैनेजमेंट मनीला फिलीपींस में है, जहाँ पे देखे थे हम लोग EDB है, इंटरनेशनल लाइसेंस इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFFRI वाशिंगटन DC USA। इंटरनेशनल सर्विस फॉर एग्रीकल्चरल नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च नेदरलैंड पे है। देन नॉन CGIAR इंस्टीट्यूशन फर्स्ट है एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ABRDC ताइवान पे है। इंटरनेशनल बोर्ड फॉर सॉइल रिसर्च एंड मैनेजमेंट बैंकॉक थाईलैंड पे है। देन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी ICIP ये कहाँ पे है? नैरोबी केन्या पे है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICIMD काठमांडू नेपाल पे है। साउथ ईस्ट एशियन रीजनल सेंटर फॉर ग्रेजुएट स्टडी एंड रिसर्च इन एग्रीकल्चर ये कहाँ पे है? लॉस बेनोस फिलीपींस पे है। देन FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है फूड वर्ल्ड प्राइज देता है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 इन क्यूबेक सिटी ऑफ कनाडा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम इटली। इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू टेंग्यू चाइना का है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका कौन है? UN Economic and Social Council. Then thanks for watching, and for such more content subscribe to our YouTube channel, like, share and subscribe with your among friends. And आपका अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिएगा, हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। और फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें हम, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।